PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ IAS IPS ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ 98% ತಗೊಂತಾನೆ 98 ಆ ಮಗುನ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೋ IAS ಆಗ್ತಾನೋ IPS ಆಗ್ತಾನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 20% ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ 75% ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 25% ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಇರ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ, ನಾನು ಜೀವನವಾಗಿ ಇರ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಾಳೆ ಬರ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ ಬದುಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರು ಹಚ್ಚಿ ಬಡವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವ, ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಮೇಲೆ ನಾವು 4 ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನೇ ಮಹಾನ್ ದೊಡ್ಡ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವನೇ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು 98 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಗು ನನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. 98% ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PU ಯಾರು ತಗೊಂಡಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಅದೇನಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ಅದು ಮಾಡು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮಾಡಲ್ವಾ, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಓದಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಾಗಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ 98% ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ತಗೋತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈಗ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್ ಹೋಗ್ತೀನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಫ್, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ, ಗೀಲಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक, जय भारत। रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्कूलों और कॉलेजों के टॉपर्स पर इनामात की बारिश। BZ जमीर अहमद खान ने दिया बड़ा तोहफा, हर टॉपर के लिए 2 व्हीलर का तोहफा। जी हां दोस्तों, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए वजीर अकलियती बहबूद BZ जमीर अहमद खान ने हर टॉपर को 2 व्हीलर का तोहफा देने का ऐलान किया। बेंगलुरु में आज माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट के तहत शानदार तकरीब मुनक़द हुई। SSLC और PUC दुवम के कुल 54 स्टूडेंट्स 54 स्टूडेंट्स को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। SSLC के टॉपर्स को हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये, PUC के टॉपर्स को हुकूमत की जानिब से 15,000 रुपये कैश प्राइज मेडल मोमेंटो से नवाजा गया। जबकि मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की जानिब से हर स्टूडेंट को स्मार्ट वॉच तोहफे के तौर पर दी गई। कुल 54 स्टूडेंट्स में 96% से जायद मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर के तोहफे का BZ जमीर अहमद खान ने ऐलान किया। 15 अगस्त से पहले 36 स्टूडेंट्स को 2 व्हीलर का तोहफा उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा। जमीर अहमद खान ने कहा कि एक वक्त था जब बच्चा SSLC के इम्तिहान में टॉप करता था तो वालिदैन अपने बच्चे को तोहफे के तौर पर साइकिल दिया करते थे।
लेकिन आज के दौर के हिसाब से उन्होंने तमाम टॉप स्टूडेंट्स के लिए 2 व्हीलर के तोहफे का ऐलान किया है ताकि स्टूडेंट्स और वालिदैन की हौसला अफजाई हो सके। दूसरी जानिब स्टूडेंट्स की खुशियों की कोई इंतहा न थी। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत ज़मीर अहमद खान ने तालीमी तरक्की के लिए ये खिदमत अंजाम दी है। अपने खिताब में ज़मीर अहमद खान ने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत, इक़्तिदार, हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन कहीं न कहीं वो तालीम में पीछे हैं। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उन्होंने 10वीं जमात तक की भी तालीम मुकम्मल नहीं की। आज इस बात का उन्हें दुख है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वो इल्म की दौलत से महरूम हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मौजूदा नस्ल आला से आला तालीम हासिल करे, आला से आला अहदों पर फायज रहे। इसलिए वो एजुकेशन की जानिब ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बीजेड ज़मीर अहमद खान ने यह भी ऐलान किया कि आइंदा साल PUC दुवम में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कॉलेज का जो भी स्टूडेंट 98% लेकर कामयाब होगा, उस स्टूडेंट को वो अडॉप्ट करेंगे और PUC के बाद की तालीम का पूरा खर्च बर्दाश्त करेंगे। 98% मार्क्स के साथ जितने भी स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उन्हें वो खुद अडॉप्ट करेंगे। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि माइनॉरिटी महकमे के तहत डिग्री कॉलेज कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से वो अक़लियती बहबूद के वज़ीर हैं और आइंदा 4 साल भी इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे और वज़ीर आला सिद्दरा मैया की क़यादत में अक़लियतों और तमाम तबकों की तालीमी तरक्की की जानिब सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्कूलों और कॉलेजों में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले टीचर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। कर्नाटक माइनॉरिटीज डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर जीलानी मकाशी ने आला पैमाने पर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करने पर रियासती वजीर बीजेड ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। CBSE के 2 बच्चे टॉपर थे, मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल के 2 बच्चे टॉपर थे। टोटल 30 पर 6 बच्चे जो 97% क्रॉस किए थे, उनके लिए फेलिसिटेशन करके उनका सम्मान किया गया। उसके साथ साथ में बच्चों के लिए एनकरेज करना करके मेरी तरफ से उनको एक 2 व्हीलर व्हीकल दिया गया है, मेरी तरफ से। टोटल 36 बच्चों को, 10 बच्चे SLC के जो टॉपर थे अबव 97%, जो PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, कॉमर्स के अंदर 10 बच्चे थे, साइंस के अंदर 11 बच्चे और CBSE टॉपर 2 ही बच्चे थे। वो 2 बच्चे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के 2 बच्चे, टोटल 36 बच्चों को मेरी तरफ से ये 2 व्हीलर व्हीकल दिया गया। वजह उसकी क्या है, बच्चों को इंकरेज करके आगे आने वाले बच्चे ये देख के अच्छा पढ़ना करके सोच के मेरी तरफ से 2 व्हीलर व्हीकल दिया गया। इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ सर माइनॉरिटी। उसके लिए हम लोग ज्यादा जब मेरी शाला में मुझे मौका देने के बाद मैं एजुकेशन के अंदर तजर्बा ज्यादा दे रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है, बगैर तालीम के कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर तालीम अगर अच्छी हुई तो बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, फ्यूचर अच्छा होता है। खाली उनके माँ बाप को, खानदान को नहीं, और एक 4 आदमी को पाल सकता है। वो देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को मस्त एजुकेशन। आज की तारीख में आप देखे होंगे, पहले को आप कंपेयर करेंगे, अभी को कंपेयर करेंगे, पहला इतना तालीम के ऊपर ध्यान नहीं देते थे पेरेंट्स। इस बार अभी आने क्या हो रहा है, जो ऑटो ड्राइवर हो, कुली करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, मैं 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का 2 वक्त का खाना खाऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ना, मैं जो तकलीफ उठा रहा हूँ मेरे बच्चे नहीं तकलीफ उठाना करके पेरेंट्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर आपने एक ऐलान ये भी किया है कि जो 98% मार्क्स लेंगे आइंदा उन्हें अडॉप्ट करेंगे। नहीं, वो क्या हो गया ना, अभी हमारा माइनॉरिटी, अभी मैं अल्लाह मियां मेरे को मौका देके माइनॉरिटी मिनिस्टर गया है। अभी बच्चों को इनकरेज करने से क्या होता है, बच्चे थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अभी 98% लेना इतना आसान नहीं है। 98% बच्चा अगर मार्क्स लेगा वो, यानी PUC के अंदर, तो यानी वो एक बच्चा ये है करके ना, उसमें एक टैलेंट बच्चा ना। अभी बहुत से बच्चों में क्या होता है, गरीब बच्चों में अगर 98% भी लेंगे, अगर डॉक्टर बना तो आप जानते हैं, अगर डॉक्टर बनने के लिए अगर सीट लेने जाएंगे तो उसका डोनेशन ही जो है
कम से कम 1 करोड़ रुपए होता है। गरीब आदमी डोनेशन देके कहाँ से डॉक्टर बनाएगा बच्चों को। उस वजह से अभी मेरिट के अंदर सीट मिलता है। अभी मेरिट के अंदर सीट मिलने से क्या होता है, उसको हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में से अभी 5 लाख की है। तो बच्चा जो भी बच्चा 98% हमारी माइनॉरिटी स्कूल के अंदर जो भी 98% बच्चा अगर मार्क्स लेगा, वो बच्चे को मैं अडॉप्ट करके वो IAS होता है, IPS होता है, कुछ भी इंजीनियर होना चाहता है, वो बच्चे को मैं अडॉप्ट लेके करता हूँ करके वादा किया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं करता हूँ। 12th PUC मेन क्या है अभी इसके अंदर देखो, तालीम के अंदर पहला सीढ़ी होता है SLC। अगर बच्चा SLC पास हो गया ना तो हाई स्कूल जा सकता है। अगर हाई स्कूल के बाद 8, 9 तो नॉर्मली पास होते बच्चे। 10th का एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल है। अगर 10th का एग्जाम अगर पास हो गया तो वो सेकेंड सीढ़ी है। थर्ड सीढ़ी क्या है, PUC सेकेंड ईयर अगर पास हो गया उसके बाद वो डिसाइड कर देगा क्या मैं लॉयर बनना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना, IPS बनना। वो बच्चों को क्या रहता है, ऐसे बच्चे जो भी 98% लेते हैं उनको भी अडॉप्ट करके उनकी चॉइस का स्कूल। अभी एक बच्चा आया था 97% कुछ मार्क्स लिया, उसकी गाड़ी दिया उसको, 2 व्हीलर दिया। उसकी माँ आके एक रिक्वेस्ट कर ली मेरे से, जो बच्चा सुहेल करके कुछ बच्चा SLC का बच्चा, वो सुहेल करके एक बच्चा है 98% मार्क्स लिया गया है। अभी वो बच्चा 98% मार्क्स लेने के बाद कोई प्राइवेट स्कूल में डाले उसको। प्राइवेट स्कूल के अंदर उसकी फीस जो है सालाना 2 लाख रुपए होती है। वो उसकी माँ आके मेरे से रिक्वेस्ट कर ली, साहब अब व्हीकल दे रहे, 1 लाख रुपए की व्हीकल दे रहे, मेरे को व्हीकल की जरूरत नहीं है, उनका वालिद का इंतकाल किया है, यतीम बच्चा है, वो जो व्हीकल के पैसे है मेरे को दे दो 1 लाख रुपए, उससे अच्छा मैं बच्चे की फीस भर देंगे। उसकी ख्वाहिश है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, ऑलरेडी उसकी एडमिशन मैंने करा दी करके। वो सोचने के बाद मैं उसको व्हीकल भी दिया, उसके एडमिशन के लिए 1 लाख भी दिया मैं। जो अच्छा मार्क्स लेकर टैलेंट बच्चे होते हैं उनको एनकरेज करना हमारा फर्ज होता है।